Hello and welcome to this course. This course is specifically designed for those students who want to prepare for IIT JEE Mains and JEE Advanced. Okay, in this particular lecture, we are going to start quadratic equation for IIT JEE Mains and JEE Advanced. So firstly, we will look at the syllabus for JEE Mains and JEE Advanced for quadratic equation. So in this lecture or in the upcoming lecture, we will see these whole concepts. We will cover all these topics and then we will move to some questions related to these topics so that we will get a deep understanding of these topics. So in these upcoming lectures, we are also going to give you some basic questions so that you can also practice these concepts. Okay, now let us start our series. So to take the full advantage of this course, you should definitely take a copy and note down all the concepts. Okay, after taking notes, you should definitely revise this concept, and after revision you should go for the question. Okay, let's start our chapter quadratic equation. So firstly we will see the definition of polynomial. Okay, what is a polynomial? ठीक है, आप सभी क्या काम करो, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट आने वाली वीडियोस में आपको पढ़ाए जाएंगे, आप एक कॉपी लो और उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ. ठीक है, नोट्स बनाओगे एंड देन उसका रिवीजन करो, साथ में फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो जो आपको लेक्चर में दिखाए जा रहे हैं. बाद में हम कुछ एडिशनल आपको प्रॉब्लम भी देने वाले हैं. सो फर्स्टली लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल. अ फंक्शन एफ डिवाइड बाय एफ एक्स. ठीक है, अपने पास एक एफ फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स. ठीक है, दिस फंक्शन एफ एक्स ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू फंक्शन कहां तक है ये ए वन एक्स प्लस ए नॉट. दिस इज अ polynomial of degree n. In quadratic equation we will particularly see those polynomial whose degree is 2, but in general this is a polynomial of degree n where an is the coefficient of x to the power n and an minus 1 is the coefficient of x to the power n minus 1. Similarly, a1 is the coefficient of x and a naught is the constant term in this particular expression. Okay, now look at the definition of quadratic polynomial and quadratic equation. These are the basic definitions. These are not going to ask in JEE Mains or JEE Advanced or whatever exam you are going to appear. These are for general understanding. So if you are going to give such exams, so you must know whatever these terms are. Okay, now see what is quadratic polynomial. Okay, what is quadratic polynomial? A polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. So in above what we have seen, this is a polynomial of degree n. So if we look at a polynomial of degree 2, this is a polynomial ax square plus bx plus c. This is the polynomial of degree 2, hence this polynomial is called quadratic polynomial. Okay, this polynomial is called quadratic polynomial. ठीक है, now next definition is quadratic equation. So what is a quadratic equation? Any equation fx is equal to 0 where f is a quadratic polynomial. ठीक है, तो अगर मैं इस quadratic polynomial को if I put this quadratic polynomial is equals to 0, hence this equation becomes a quadratic equation. Okay, this quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equals to 0, hence this become a quadratic equation. ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता चल गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए सिंपल पॉलिनोमियल. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल दिस पॉलिनोमियल. ओके, नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ पॉलिनोमियल fx is equals to 0 where fx is a quadratic polynomial, hence this polynomial is called quadratic equation. In this quadratic equation ax square plus bx plus c, a b c are the real number and a not equal to 0. ठीक है, so this is the necessary condition for a quadratic equation. In quadratic equation a not equal to 0. ठीक है, अगर a equal to 0 हो गया then this equation converts into a straight line. Okay, see here, if ax square plus bx plus c is equals to 0, ठीक है, this is a quadratic equation. अगर इस इक्वेशन में a is equals to 0 हो गया then this whole term vanishes, then this equation converted into bx plus c is equals to 0. This is the straight line equation. So the necessary condition for a quadratic equation is a not equals to 0. ठीक है, now move to next topic.
डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अगेन अ सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज अ इक्वेशन एंड व्हाट इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, क्या होता है, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, देन सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होगा, अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है सभी वैल्यूज के लिए, देन सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एंड अगेन इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम और नो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है कुछ वैल्यूज के लिए या कोई भी वैल्यूज के नहीं, ठीक है, अगर वो कोई स्टेटमेंट ट्रू है फॉर सम वेरिएबल्स या फिर नो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, देन सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड इक्वेशंस। ठीक है, अब आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल से इस डिफरेंस को हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, क्या है एग्जांपल, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ये जो है दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखता हूं, ठीक है, इफ आई पुट x वॉट एवर, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर लो, तो ये जो इक्वेशन है दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज एन आइडेंटिटी। मूव टू एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज एन इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। दिस एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन हैविंग -1 एज अ रूट। ठीक है, तो इसका रूट क्या है, -1, मतलब फॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूं, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1 -5 प्लस 8, दिस विल बिकम 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर हैविंग रूट -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स विच मे बी रियल, ओके, इक्वल और अनइक्वल और इमेजिनरी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस एज्यूम अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि a, b और c, a क्या है, a जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो a, b, c की क्या वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं कुछ रिलेशन निकालने वाला हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने एक जनरल इक्वेशन एज्यूम कर ली यहाँ पे। ठीक है, नाउ फॉर ABC हम लोग कुछ कंडीशंस चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या फर्स्ट मूव करते हैं अपन, क्या अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में a नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हेंस दिस इक्वेशन बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैज 2 रूट्स। ठीक है, नाउ अ लीनियर इक्वेशन, जो अबव इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन कब होगी, जब b नॉट इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 0 हो जाता है, हेंस दिस टर्म वैनिशेस, मतलब bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -c ओवर b, तो क्या होगा, ओनली 1 रूट। ठीक है, तो कंडीशन मेरे पास क्या आई, अगर a 0 हो जाता है, a इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू अ लीनियर इक्वेशन, हेंस दिस इक्वेशन हैज अ 1 रूट। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर a और b 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाएगी, मतलब नो रूट एग्जिस्ट। ठीक है, एंड आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी कब हो जाएगी, जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, मतलब क्या, इनफाइनाइट रूट्स। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाता है, मतलब क्या, एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, मतलब क्या, दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट रूट्स। ठीक है, तो अपन ने अब कंडीशन सब चेक कर लिए हैं, क्या a, b, c और इन तीनों की क्या क्या वैल्यूज लेने पे ये इक्वेशन किस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक नोट दिया आपने, क्या, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x, देन इट इज एन आइडेंटिटी। ठीक है,
अगर मेरे पास ये इक्वेशन जो है ये कम से कम 3 वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाई कर रही है, देन दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपको एज ए नोट ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 1। अभी तक अपन ने जो भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन डेफिनेशन के बेसिस पे अपन कुछ एग्जांपल भी देखने वाले हैं, और इन लेक्चर्स में हम लोग आपको कुछ सेल्फ क्वेश्चंस भी देने वाले हैं जो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ताकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और जो भी इस लेक्चर की पीडीएफ है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल दिस स्टफ वेरी क्विकली। नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल 1 में फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक करना है क्या, वेदर दिस इज एन इक्वेशन और आइडेंटिटी। ठीक है, तो सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, इन 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, a नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब a की वैल्यू क्या है? 3 दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 0 हो जाता तो क्या होती है? ये होती लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हियर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू 0 है, सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, सिंपल, आपको क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ रहा होगा, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, यहां मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेता हूं। ठीक है, दिस अबव एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, सो दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, इन एग्जांपल 2, x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। This expression is an identity because this expression is true for all the values of x। या फिर मैं बोल सकता हूं ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू है for more than 3 values of x। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा? दैट इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये दिस इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, या फिर मैं बोलूं x की वैल्यू कुछ भी हो, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, here I have assumed a general quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c is equals to 0 where a naught is equals to 0। ठीक है, this is the necessary condition for a quadratic equation a naught is equals to 0। ठीक है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स में और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर दिस वैल्यू ओवर 2a। सो दिस इज द फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, so by using this formula I can easily find out the roots of a quadratic equation। okay, so you must also remember that for a quadratic equation, quadratic मतलब दो, a quadratic equation has two roots। okay, a quadratic equation has two roots। so after solving this Dharacharya formula we will find out whatever quadratic equation you have, you will get for two values of x। after solving this formula you will get the roots of the equation। what is b square minus 4ac? this particular term b square minus 4ac, this term is called discriminant of quadratic equation। b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation and it is represented by d। okay, this is discriminant। okay, ध्यान रखना है आपको, इसका भी यूज आएगा बहुत ज्यादा आगे, तो याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज b square minus 4ac। okay, now look at the relation between coefficients and roots। okay, if alpha beta are the roots of quadratic equation। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अभी? अगर मेरे पास quadratic equation है, if I am having a quadratic equation then it must have two roots। ठीक है, तो क्या होगा? टू रूट्स होंगे। तो मैंने एज्यूम कर लिया जो रूट्स हैं वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ax² प्लस bx प्लस c, देन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं? a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं?
ए इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 वेयर एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आई कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अभी ये कैसे आना है अपन ने वो अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो मैं उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या ए इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, या फिर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बने इसको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर द आइडेंटिकल इक्वेशंस, सो वी कैन इजीली कंपेयर दिस इक्वेशन। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। So on comparing these two equations, what we will get? Alpha plus beta, this value is minus b upon a, okay? And similarly alpha beta क्या हो जाएगा? Alpha beta is c upon a, ठीक है? तो यहाँ पे alpha beta क्या आया? minus b upon a। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे sum of root निकालना है, this alpha plus beta is called sum of roots and alpha beta is called product of roots। तो ठीक है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स निकालना है तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली है, क्या ध्यान रखना है अपने को, अगर मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो मैं उससे सम ऑफ रूट निकाल सकता हूं। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड a is the coefficient of x square. Now look at product of root. Product of root is alpha beta. ठीक है, product of root क्या हो जाएगा? alpha beta and this is given by c upon a, where c is the constant term and a is the coefficient of x square। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, याद रखना है अपने को। तो सिंपल समराइज तरीके से मैं लिख देता हूं, आपको क्या याद रखना है, अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, दिस इज अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ठीक है, तो मैं सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Similarly, alpha beta, this is the product of root. This product of root is equals to c over a, where c is the constant term and a is the coefficient of x square. ठीक है, this is a simple result. तो अभी ऊपर हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, वो जो इक्वेशन हमने ऊपर बनाई थी अभी, वो किस तरीके से ड्राइव हुई, ठीक है, वो अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एक जनरल इक्वेशन जो अपने एज्यूम की थी यहाँ पे, वो क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय ए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी अपन ने निकाला था क्या? मैं इस इक्वेशन को और क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी ओवर ए लिख सकता हूं मैं। इस बी ओवर ए को आई कैन राइट दिस बी ओवर ए एज माइनस माइनस ऑफ बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए एज इट इज। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? दिस माइनस बी ओवर ए इज अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं इक्वेशन में। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस in this equation। तो एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए क्या है? सी अपॉन ए इज दिस अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऊपर जो हमने अभी इक्वेशन निकाली थी वो कुछ इस तरीके से आई थी। ठीक है, ये इक्वेशन थी ऊपर, या फिर मैं इसमें लिख सकता हूं, अगर मैं बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए इंटू एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हमने अभी ऊपर निकाली थी। तो जो ओवरऑल इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अगर मेरे पास एक क्वेश्चन लेटस एज्यूम करते हैं कि अगर मुझे एक क्वेश्चन में सम ऑफ रूट दिया हुआ है, मुझे सम ऑफ रूट दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन है, मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो ठीक है, मैं सम ऑफ रूट की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू इजीली यहां पुट करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकता हूं जिसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है। ठीक है, तो इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं अपन? ठीक है, a quadratic equation whose roots are alpha beta is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equals to 0। ठीक है, यही अपन ने यहाँ पे ड्राइव किया था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये ड्राइव किया है। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो मुझे वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। अगर मैं इक्वेशन में x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दूं तो मुझे वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट क्या है? अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है, ठीक है, ये जो अभी अपन ने ऊपर वाला मेथड देखा था, दिस इज द ट्रिकिएस्ट मेथड। ठीक है, तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो यू कैन गो फॉर दिस मेथड। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेटरी देखना है तो देखो हम इसको और कैसे कर सकते हैं समझने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें। अगर इक्वेशन मेरे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है? अल्फा कोमा बीटा। तो ठीक है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस वैल्यू इज माइनस बी ओवर ए, अपन ने ऊपर देखा था। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फा बीटा एंड दिस इज c ओवर a। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड दैट इक्वेशन हुज रूट इज अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है, तो वो इक्वेशन के सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट इज अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो दिस ओवरऑल बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 और अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए। तो ठीक है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए प्लस 4। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई कर देते अंदर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। इसको मैं सिंप्लीफाइड कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ठीक है, अब मुझे अल्फा बीटा भी पता है और अल्फा प्लस बीटा भी पता है, तो मैं इसको ओवरऑल कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है? c ओवर a प्लस 2 इंटू माइनस बी ओवर ए प्लस 4। ठीक है, अब मुझे जो इक्वेशन है जिसके रूट क्या है? अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, मुझे उसका सम ऑफ रूट भी पता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है। नाउ आई कैन इजिली फाइंड दैट इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन इज क्या होता है? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट करके वो इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 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 बी अपॉन ए प्लस 4 प्लस सी ओवर ए प्लस 2 इंटू माइनस बी ओवर ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं इसको जब सॉल्व कर लूंगा तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। तो दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू दिस इक्वेशन। सो ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकता हूं जिसके रूट्स कुछ और गिवन हो। ठीक है, नाउ अभी हमने आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको खुद से ट्राई करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आपको, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, बट ट्राई इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, नाउ इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट। उस प्रॉब्लम से, उस कंसेप्ट से जी मेंस और जी एडवांस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ जेई मेंस और जी एडवांस के प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक हम कंसेप्ट पढ़ लेंगे और जेई मेन और जी एडवांस से क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ मजा नहीं आने वाला। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।